हमें दिया velocity of ball of mass m and density d1 when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. Constant after some time means it requires a terminal velocity. So हमें दिया ball requires a terminal velocity when it falls in glycerin. उसमें viscous force कितनी लग रही है? Normally अगर मैं इसका force diagram बनाऊं, that will be this hand. इसमें जो forces act कर रही है, one is acting downwards, upwards and viscous force. Because we say that body requires a terminal velocity. Terminal velocity constant velocity. मतलब net force zero होगी. Net force zero कब होगी? So body requires terminal velocity plus F equals to W. Bring this. हमें दिया बॉल का मास है में डेंसिटी d1 है. And glycerin की डेंसिटी d2 है. So we say it's V d1 minus d2 into G. And volume can be written as mass over density. So this comes out to be कौन से ऑप्शन बनेगी? This one. mg1 minus d2 का d1. Clear है? Next देखो. A marble of mass x and diameter 2r is gently released in a tall cylinder containing honey. If marble displaces mass y, terminal velocity is proportional to. हमें दिया मार्बल का मास x है, उसका डायमीटर 2r है, रेडियस r है. It's dropped in a tall cylinder containing honey. So marble displaces mass x. Then terminal velocity is proportional to. Terminal velocity किसके proportional होगी? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2/9 r² g eta sigma rho minus sigma. T is equals to rho minus sigma g by eta. तो हमें क्या गिवन है? मास इज x एंड मार्बल डिस्प्लेसेस मास y. मास लिक्विड क्या होगा? मास ऑफ बॉडीज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. इन मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो मैं बस रो कितना आ गया एंड सिग्मा इज वाई बाय बी. अगर ये दो वैल्यूज में यहां पे पुट कर दो 2/9 r² by eta g x by b माइनस और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? r³ के. Terminal velocity becomes proportional to x minus y by r. Clear है? Yes, sir.
हमें सिर्फ रो और सिग्मा की वैल्यू पुट करनी थी बिकॉज हमें दिया मास ऑफ द बॉडी इज एक्स, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड इज वाई, तो वहां से लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है ये? Yes, sir. Work required to form a bubble of volume V from a given solution. What amount of work is required to be done to form a bubble of volume 2V? अगर बबल ऑफ वॉल्यूम V बनाना है तो वर्क डन इज W। अगर 2V बनाना है, वर्क डन टू फॉर्म अ बबल फॉर्मूला इज, अगर मेरे को एक O सोप बबल बनाना है जिसका रेडियस R है, तो वर्क डन इज गिवन बाय R वर्क डन टू pi फॉर्म अ सोप बबल 8 pi R square T. 8 by R square T। Sir, last option. लास्ट ऑप्शन। हमें दिया, हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया। Volume is 4 by 3 pi r dash cube. It's twice of initial volume. Implies radius increases. R dash is if radius increases 2 raised to the 1 by 3 times, work done will be work done is proportional to r square. So W dash is proportional to r dash ka square. And then it becomes 2 raised to the 2 by 3 into r square. So 4 raised to the 1 by 3. समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. तो वो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. The density of water at the surface is rho. Bulk modulus of water is B. The density of ocean water at a depth when pressure is alpha P naught. P naught is atmospheric pressure. P naught, capital P naught. There's small P naught सब जगह बनी. And density is rho. Answer नहीं rho है सब जगह. It's not P. हमें बताना है कि surface पे density rho है. So at a depth where pressure becomes alpha times atmospheric pressure, तो density क्या होगी? कैसे करें इसको? हमें बल्क मॉडुलस दिया था, बल्क मॉडुलस इज डी। बल्क मॉडुलस का ये फॉर्मूला था आपके पास, टी बाय डेल्टा वी। कैसे कर सकते हैं इसको? अगर इनिशियल वॉल्यूम वी है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा या कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम वी है और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है,
if initial volume is V, so we can say volume at surface is V. Volume at depth is. ये step ठीक है, volume at depth is V minus delta V. Delta V is V by V. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर कितना अप्लाई किया सरफेस पे, प्रेशर कितना था, पी नॉट P नॉट, बेस पे पी नॉट प्लस एच रो जी। हमें दिया प्रेशर इज अल्फा P नॉट। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में वैल्यू दी है, when the pressure is alpha P नॉट, तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, अल्फा माइनस वन पी नॉट। अल्फा माइनस वन इंटू P नॉट। We can say this becomes delta V is equals to V ये न्यू वॉल्यूम आया हमारे पास V डैश। न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगी, न्यू डेंसिटी, तो मैं ऐसे लिख लूं न्यू डेंसिटी को, रो डैश इज रो V by V डैश। So A what is the answer? एक्सक्यूज मी सर। ये स्टेप देखो, ये समझ में आ रहा है ये क्या किया है? सर यहाँ पे आपने रो वी अपॉन वी नॉट क्यों लिया रादर देन रो वी नॉट अपॉन वी? कहाँ पे, यहाँ लास्ट पे स्टेप में आपने। यस। कांस्टेंट क्या रहता है, मास, मास क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम इंटू अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी। So initial volume into initial density is final volume into final density. Rho v is equal to rho dash v dash ओके। होगा ना। यस सर। देखो ध्यान से, और कुछ नहीं समझ आ रहा, क्लियर है? सर बल्क मॉडुलस में जो पी होता है वो चेंज इन प्रेशर होता है। प्रेशर अप्लाइड होता है ना, तो सर गॉज प्रेशर अप्लाई करेंगे ना, बिकॉज ऊपर प्रेशर पी नॉट है, नीचे अल्फा पी नॉट है, तो गॉज प्रेशर तो अल्फा माइनस वन इंटू पी नॉट क्यू हुआ, प्लीज प्रेशर अप्लाइड, इसके कारण वॉल्यूम ओके चेंज हो रहा है। ओके सर। Two soap bubbles, one of radius 50, other of radius 80, are brought in contact so that they are common interface. The radius of curvature of common interfaces. एक का रेडियस 50 है, एक का 80 है, एक्सेस प्रेशर ज्यादा किसमें होगा, 50। 50 में, जिसका रेडियस कम है। तुमने बताना इंटरफेस का रेडियस क्या होगा। अगर मैं आपको कभी भी कर्व सरफेस देख रहा हूं, एक मैंने अगर ऐसे ही कर्व सरफेस बनाया, पीए ज्यादा होगा या पीवी ज्यादा होगा, किस साइड प्रेशर ज्यादा होता है, कनकेव साइड कन्वेक्स साइड, पी ए कनकेव साइड। कनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अब हमारे को दिया कि हमारे पास दो सोप बबल्स हैं और उनको हमने ज्वाइन किया,
एक का रेडियस था 50, तो ये जो कर्वेचर बना इसका रेडियस बता रहा है इंटरफेस का, जिसे इट फॉर्म्स अ डबल बबल। ये P1, ये P2। T1 कितना होगा? प्रेशर इनसाइड स्मॉलर बबल। T0 plus 4T/R1। Pressure inside larger bubble is, यहां तक ठीक है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? P1। T1। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस इंटरफेस, मतलब इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना है? इट विल बी 40/R1। प्रेशर डिफरेंस मतलब P1 माइनस P2। यही प्रेशर डिफरेंस है। अब अगर मेरे पास एक कर्व सरफेस है, इसका रेडियस R है, अगर मैं आपसे पूछता PA माइनस PB कितना है, दैट विल बी 40/R। अगर ये ऑप्शन इंटरफेस का रेडियस R है तो प्रेशर डिफरेंस दोनों साइड पे 40/R होना चाहिए, और इस फॉर्मूला से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है 40/R1 माइनस 40/R2। तो R कितना हो गया? आप इसको वैसे फॉर्मूला की तरह भी याद रख सकते हो, इंटरफेस के रेडियस का फॉर्मूला होता है R2/R1/R2 - R। 0.133 आ रहा होगा इस सॉल्व करके। यस सर। सो आप इसको याद रख सकते हो, इस फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस। क्लियर है? टू पैरेलल वायर्स each of length 10 centimeter are 0.5 centimeter apart. A film of water is formed between them. Surface tension of water given and work done in increasing the distance between the wires by 1 millimeter. मतलब अगर पहले डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 0 जीरो 0.6। पॉइंट 0.6 हो गया। हमारे पास दो पैरेलल वायर्स है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनके बीच में एक सोप फिल्म बनी हुई। ये इसकी लेंथ में हमें क्वेश्चन में दिया, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया कितना है? एल बी या 2L इंटू बी? एक सरफेस है या दो सरफेस है? दो सरफेस है। सो 2L फिल्म के दो प्लस AB। सरफेस है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। अगर मैं इनमें डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? T डेल्टा ए। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया।
चेंज क्या किया है? राइट, ऐसे लिख सकता हूं मैं चेंज इन एरिया को 12 Yes, sir. डेल्टा वी, सरफेस टेंशन वी है 0.072 प्लस 7.2 into 10 raised to the minus 2. Length is 10 centimeters, so 0.1 meter. 6 into 10 raised to the minus 3 minus 5 pence per piece. Yeah. This comes out to be 7.44. 1.44 into 10 raised to the minus 5. The answer. समझ में आया कैसे ही गई? So work done is surface tension and a change in surface area. Clear? Yes, sir. Yes, sir. A small sphere of mass m is dropped from a great height. After it has fallen for 100 meters, it has attained terminal velocity and continues to fall at that speed. Work done by air friction against sphere during first 100 meter of fall is greater than work during air friction in second 100 meter. हमें दिया एक बॉडी को रेजिस्टिव मीडियम में ड्रॉप किया आफ्टर 100 मीटर इट रिक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी तो वर्क डन सेम होगा फर्स्ट 100 मीटर और नेक्स्ट 100 मीटर में या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होएगा ज्यादा किसमें होगा? सर, सेकंड हाफ में ज्यादा होएगा क्योंकि एवरेज स्पीड सेकंड हाफ में ज्यादा है। सेकेंड हाफ में तो कांस्टेंट है स्पीड, सर लेकिन फर्स्ट फर्स्ट हाफ हाफ में में इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to v, तो फर्स्ट हाफ में वर्क डन कम होगा बिकॉज वर्क डन इज F into S एंड रेजिस्टिव फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर 6 इंटू by वी। eta r v. Resistive force in first 100 meter increases when, whereas in second half it's constant. आप कह सकते हो फर्स्ट हाफ में जो एवरेज फोर्स है दैट इज F/2 और सेकंड केस में इट्स F. अदरवाइज यू कैन से बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, F का एक फॉर्मूला था. फर्स्ट हाफ में भी टर्मिनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड नहीं है तो स्पीड कम है तो वर्क डन भी कम आएगा. क्लियर है? यस सर। A drop is broken into smaller drops. Surface energy. बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप्स बनाई, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। सरफेस एनर्जी बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? बिकॉज क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। पूरी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है इसलिए सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी. और सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज हो रहा है? कितना इंक्रीज करता है सरफेस एरिया?
n raised to power 2 by 3. 10⁻²/3 कैसे? सर क्योंकि r नॉर्मली हम लेते हैं कि अगर एक बिग ड्रॉप है area is 4 pi r square, and for n small drops, n into 4 pi r square. Smaller capital R में relation क्या था? So you can say n or you can say area of small drops is n raised to power 1 by 3 times area of big drop. So when number of small drops combines to form a big drop, the surface area increases, therefore surface energy will also increase. Surface energy will also increase. Clear, right? yes sir. Next. Length of a needle floating on water is 2.5 centimeter. The minimum force in addition to weight needed to lift the needle above the surface of water. मतलब एक हमने force due to weight of the needle तो overcome ही करनी है और कौन सी फोर्स है जिसको ओवरकम करना है अगर निडल को सरफेस के ऊपर से उठाना है तो surface हमें tension इट्स फ्लोटिंग और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी होगी 2L into T. 2TL बिकॉज दो लेंथ लेनी पड़ेगी तो एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड इज 2TL इधर मल्टीप्लाई करना था First option. Let's say F is equals to 2TL मल्टीप्लाई करके देख लेना जो भी आंसर आएगा First फाइव option थ्री पॉइंट सिक्स ही आ रहा है ए पार्ट ही आ रहा है A fraction of a floating object of volume V naught and density D naught above the surface of liquid of density D. हमें बताना है fraction of floating object of volume V naught above the surface of liquid. Principle of flotation is that weight is equals to upthrust. If V is the total volume and V1 is the volume immersed, तो equilibrium के लिए condition क्या थी? Floating body The C option.
So volume immersed is volume outside liquid is V minus V naught minus V1. So fraction of volume, one minus V naught by D. Clear that? Yes, sir. A drop of liquid of density rho is floating half immersed in a liquid of density D. If rho is the rho no, by sigma. If sigma is the surface tension, the diameter of drop is. Diameter of drop कितना हो जाएगा? कैसे करेंगे? हमें दिया drop of liquid of density rho. Its floating is half immersed in a liquid of density D. अगर surface tension भी दिया तो force due to surface tension भी लेनी पड़ेगी. Net force on it should be zero. Net force कौन सी तीन forces लग रही हैं? Weight, upthrust, and surface tension. surface tension. However, अगर एक spherical drop है, half immersed in liquid. Weight is 4/3 pi r cube rho g. Force due to surface tension 2 pi r. 2 pi r into sigma. And this is balanced by upthrust. सर 2 pi r square नहीं आएगा? क्या कह रहे हो? सर 2 pi r square नहीं आएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Surface tension multiplied by length या surface tension multiplied by something else? Surface tension multiplied by area. Area. Surface tension force per unit area होती है. Area in contact with water. Area या length? Sorry, length. Length. तो length 2 pi r है ना circumference. Okay, sir. इसको सॉल्व करो क्या आएगा? You can write this as
हो जाएगा सॉल्व ये। यहाँ से रेडियस निकलाएगा, बिकॉज अगर आप देखोगे तो आर स्क्वायर निकलाएगा, यहाँ से एक आर तो कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, सब वैल्यूज कैंसिल हो रही है। रेडियस निकलाएगा, रेडियस निकालने के बाद डायमीटर बताना है तो 2r। रेडियस में मैं देखूं तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ रहा है 3 सिग्मा, तो 12 सिग्मा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सॉरी। यस सर। A small spherical ball, steel ball, falls through viscous medium with terminal velocity v. A ball of twice the radius but same mass is used. It will fall with terminal velocity. Twice the radius but same mass. अगर मैं फर्स्ट बॉल को लिखूं, ये उसका मास है, सेकेंड बॉल का मास भी सेम है, तो रेडियस डबल है, तो सेकेंड की डेंसिटी कितनी आ गई? बाय 8। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 आर स्क्वायर जी ईटा बाय 2/9 आर स्क्वायर रो जी बाई एटा। सेकेंड केस में रेडियस डबल कर दिया, डेंसिटी 8 टाइम्स कम कर दी, टर्मिनल वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। समझ आ रहा है? यस सर। मैंने सिग्मा क्यों नहीं लिया? मैंने इस क्वेश्चन में सिग्मा नहीं लिया, तो अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बनता, नेगलेक्ट बॉयंसी। सिग्मा तो पॉइंट फोर्स के कारण था, तो ने कहा निगलेक्ट बॉयंसी, तो पॉइंट फोर्स नहीं लेनी, इसलिए 2/9 आर स्क्वायर रो जी बाई एटा। आया समझ? यस सर। यस सर। A large number of droplets, each of radius a, combines to form a bigger drop of radius b. Assume that energy released is converted into kinetic energy. Velocity of drop is. Small drops combines to form a big drop. तो कंसेप्ट क्या लगेगा कि जितनी सरफेस एनर्जी चेंज होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। If small drops combines to form a big drop, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा ही कितना निकाला था, अभी एक पीछे क्वेश्चन में निकाला था। सही लिखा है गलत लिखा, ध्यान से बता रहे। 10⁻⁴ या 2/3? और हमें क्या करना, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, मास कितना? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 4/3 पाई वी क्यूब इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इज लो,
Surface tension होने sigma नो. 4 by cancel. B square. B comes out to be the root 60 by rho. 6 sigma by rho. This will be just n raised to power 1 by 3 upon B is 1 by E. Because n drops combines to form a big drop, तो हमारे पास ये relation है. So n raised to power 1 by 3 upon B is 1 by E. Clear है? Yes. Yes, sir. A wooden ball of density rho is immersed in water of density rho naught to depth h and then released. The height h above the surface of water up to which the ball jumps out. वुड की डेंसिटी वाटर से कम है तो वुड ऊपर आएगी इनर्शिया का कारण और ऊपर चली जाएगी. तुमने बताना है वो कितनी ऊपर तक जाएगी. हमने एक वुडन पीस है इसको यहां से रिलीज किया फिर ऊपर आएगा और यहाँ पे जाके रुकेगा और फिर नीचे गिरेगा. एच बताना है कितना कैपिटल एच. कैसे करें? जब रिलीज किया तब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? Half. जब रिलीज किया तब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. 0. हाईएस्ट पॉइंट पे 0. तो कैसे करें इसको सॉल्व? अच्छा मेरे को ये बताना जो बॉडी ए से बी तक आ रही है ए से बी तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है. कम ए से बी तक कम हो रही कम है. हो रही है कम बढ़ रही है? बढ़ रही है कम हो रही है. बी से सी बढ़ रही है. तो टोटल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है जितनी ए से बी तक कम होगी उतनी बी से सी तक बढ़ेगी कम हो रही है. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं हुई. लिक्विड के अंदर इफेक्टिव वेट क्या होता है? लिक्विड के अंदर बाहर तो वी रो जी होता है लिक्विड के अंदर क्या होता P into G into है? rho प्लस minus वेट से sigma. ज्यादा है. यही पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे. इसको रेफरेंस मान लेंगे. इस पॉइंट से यहां तक आया तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. बाहर निकला तो कितनी बढ़ी? Hence कितना आ गया? बी पार्ट बिकॉज लिक्विड के अंदर इट्स इफेक्टिव वेट वी रो नॉट जी माइनस बी रो जी और बाहर सिर्फ बी रो जी. क्लियर है? Yes. Yes, sir. A cylindrical tube of a spray pump
has cross section 8 centimeters square. One end of which has 40 fine holes, each of area 10 raised to the minus 8 meters square. If liquid flows inside the tube with a speed of 0.15 meter per minute, speed with which liquid is ejected through the hole. क्वेश्चन समझ आया क्या है? हमारे पास ऐसे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, Yes, sir. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है. और इसमें पानी फ्लो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 0.15 मीटर पर मिनट. इसके आगे एक स्प्रे नोजल है जिसमें 40 छोटे छोटे होल्स हैं. हमने बताने होल्स में से पानी की स्पीड से निकलेगा. अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब पर यूनिट टाइम तो क्या फॉर्मूला था? A1V1. पीछे से जो पानी आया दैट इज A1V1. आगे से निकला कितना? 40 होल्स हैं. सर 50 आंसर है. तो B2 ही बताना है आपको. B2 is A1V1 upon 48. A1 is 8 centimeters square. B1 is 0.15 meter per minute, so by 60 per second. 48. A2 is 10 to the power minus 8. Solve भी करना. ये आगे सॉल्व करके A ऑप्शन सर. a spherical drop of radius r is divided into 8 droplets. Work done. Work done is change in energy. So 8 drops are divided. Big drop is divided into 8 droplets. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पीरियड टाइम और ये फॉर्मूला था. n की वैल्यू 1 डाल दो. A option. Yeah, start for by ask for it. क्लियर है यहाँ पे? Yes sir. तो नेक्स्ट टाइम करते हैं क्वेश्चंस करके देख लेना एक बार दोबारा से.